Okay, good afternoon, everyone. So meanwhile, if you have any query, then you can ask me. And I would like to remind you again that kindly enter your name in chat box. It helps me to mark your attendance. Never forget to do the same. I do not wish to repeat it again and again. Okay. Meanwhile, if you have any query, then you can ask me. I will wait for 1 more minute that if anyone else will join the session. Arjun, Aswin, any question? Arihant, Bharti, Deepika, Hussain, Jatin, any query? No, all clear. Good. Thank you. So then tomorrow and onwards, I will take few tests. I have already assigned you a new assignment today, both in web technology and C programming. And this week will kind of a multiple test. Okay. Sir, Bolo. sir, the assignment you gave, सर उसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें लीप ईयर के बारे में है हम्म कैलकुलेट द लीप ईयर द ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट तो सर उसमें क्या बेसिस पे लेके मतलब वो कैलकुलेट करना है डेज के साथ लेना है कि ईयर के साथ क्या क्या मतलब उसमें आपने मेंशन ही कर रहा है कि किस बेसिस पे लेना है बेसिस क्या होता है लीप ईयर का? नहीं जैसे मतलब ऊपर कुछ देना पड़ेगा ना कि अगर यूजर ये एंटर करेगा तो फिर पता पड़ेगा कि वो एंटर वो है कि नहीं है लीप ईयर यूजर बोलेगा, कोई ईयर देगा, तुम्हें बताना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है ना? तो ये नहीं देगा 2020 मतलब एंटर किया। डेज का तो नहीं लेना है ना हम्म मतलब डेज नहीं लेना तो ईयर ही लेना ऊपर ऑब्वियसली लीप ईयर को डेट से क्या मतलब? ये ओके बस यूजर ईयर एंटर करेगा 1999, ठीक है, और आपको बताना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, दैट्स ऑल। ठीक है ओके, हाँ। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड असाइनमेंट है वो, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और कोई क्वेरी? तो ये पहले 3 चैप्टर्स को रेडी रखिए। इसमें से आपके टेस्ट क्वेश्चन, जो पहला चैप्टर है उसका टेस्ट कल होगा, एंड साइमल्टेनियसली आई विल टेक मल्टीपल टेस्ट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो ये चैप्टर ऑलमोस्ट मैंने कर दिया था, और ब्रेक एंड कंटिन्यू हमने देख लिया है, डू वाइल हमने देख लिया है। ओके, सो चलो कुछ क्वेरी करते हैं। इसके सॉल्यूशन का क्या क्या हो सकता है, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन? क्या कोई चार्ट आ रहा है? नहीं। फाइन। सो कौन बताएगा ये डी का क्या सॉल्यूशन होगा? Who will tell me? डी शायद ये मैंने बताया थी है यार, डोंट नो। चलो वन बाय वन मैं पूछता हूँ। अभय चौधरी, अभय, अभय जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी। अभय अनम्यूट योर माइक। अभय अनम्यूट योर माइक। Okay, you should exit. Okay, just tell me the answer in chat box. अबे if you, सर डी वाला ना? हाँ डी वाला, डी वाला बोलो।
Okay, then Bharti. Bharti, just unmute your mic. If you are not able to unmute your mic, then it is better not to join the session because it is not at all beneficial for you. This must be an interactive session, and I have to report to the concerned person that they will contact you that why there is such kind of issue is meaning it's a continue you people are doing on continue basis. Okay, anyway, Shama Kataria, what's the answer? Yes, sir. Bharti is not clear. Tell me the answer. Yeah, Shama, tell Sir, me. I'm saying, sir, it's 0. 0, x is 0. Okay, let me check. So if x equal to 1 and we are checking y equal to 1 equal to 1, yes, true. Then x equals to x minus 1. That is again 0. Good. Okay. And what will be the answer of this question? E. Let me see what is the difference. Is there any difference in this two program? X equal to 1, x equal to 1, x equal Sir, in indentation. indent hai. Indent hai. Print. Yes. Yes. What is the answer of E? Who will tell me? Yeah, it's a good question. Again, Arihant. Yes, sir. Arihant. हाँ, क्या होगा बच्चे? E का आंसर? Sir, may I? क्या होगा अरिहंत? सर 0 ही होगा। हाँ, 0 ही होगा। ठीक है। ओके, क्यों होगा 0 मगर? सर क्योंकि मतलब x माइनस 1 है तो मतलब 0 ही आ रहा है, वो लूप में ही चल रहा है। क्या चल रहा है? अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। ओके, देन ये माइनस माइनस वाला छोड़ते हैं, दैट वी विल सी लेटर। ओके ओके, ये कंप्यूटर वाला हो चुका था एंड देन ये वाला भी हम लोग देख लिया एंड ये वाला देखते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग कंसीडर दैट x माइनस माइनस विल just decrement x by 1 and y plus plus will increment y by 1. So just tell me the first output. I'm not interested in all. I'm just interested in the first output. So this question is for Chirag. Chirag, tell me what is the first answer? चिराग, सर आवाज नहीं आ रही। पहला इस लूप का पहला आंसर क्या होगा? एक्स वाई की क्या वैल्यू प्रिंट होगी या होगी कि नहीं होगी? जस्ट टेल मी। And everyone else, they can directly send me message in chat box if they find answer. आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू चैट भेज सकते हो अगर आपको पता है कि क्या आंसर है तो। ठीक है, हुसैन ने भेज दिया, मितुल ने भेज दिया, स्वप्निल इज सेंडिंग सम आंसर। ओके, चिराग? सर समझ में नहीं आ रहा सर। क्या नहीं समझ में आ रहा? बोलो, तब बताऊंगा ना मैं। सर वो मैंने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी ना।
तो इसमें मेरी गलती थोड़े ना है। कब नहीं नहीं अटेंड सर, करी अभी मैं तुमने? बाहर हूँ एक्चुअली। कब नहीं अटेंड करी तुमने, ये तो बताओ। सर अभी 1-2 दिन से। 1-2 दिन की बात है ही नहीं है। हाँ सर, ये पुराना वैसे तो। तो फिर अब क्या नया एक्सक्यूज है, ये बताओ। हम्म। Okay, I'm noting down your name, and I will ask the concerned person to talk to your parents and all. Because this is not working. You are not attending lecture anyway. So, Chirag, let me write. Chirag, Tariq. Okay. So, what is your difficulty? Why you are not attending lectures? Can you specify? सर मैं एक्चुअली बाहर हूँ बाहर हूँ मतलब मैं I'm not getting. सर, आउट ऑफ सिटी। आउट ऑफ सिटी में, सिटी के बाहर होने से क्या ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं खुलते क्या? अभी क्यों खुल रहा है? नहीं सर, हाँ हाँ। वो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए। क्या कर रहे हो बच्चे जो टाइम नहीं मिल रहा है? लेट मी जस्ट, इफ इट इज नॉट दैट मच पर्सनल, यू कैन एक्सप्लेन मी। सर वो पापा के साथ लोन वगैरह लेने के लिए बैंक जाना पड़ रहा था बार ओके। बार, तो इसीलिए सर वो जो बैंक का जो टाइमिंग है ना, वो सर हाँ मैच हाँ। नहीं हो रहा था। ओके, तो दैट यू शुड इन्फॉर्म मी तो ना। सर इसीलिए आई क्लास विल टेक छूटी थी। केयर ऑफ इट। यू शुड यस इन्फॉर्म मी ना अर्लियर। मुझे आप पहले बताते कि सर यस मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं आपके लिए अलग ग्रुप बना देता, आपको मैं अलग से कुछ वीडियोस देता, या फिर कभी डाउट क्लियरेंस के लिए टाइमिंग मैनेज करता। पढ़ना है ना, यस सर। तो फिर जो भी आप कर रहे हो पढ़ने के लिए कर रहे हो ना, तो आप वही नहीं, मेन काम ही नहीं कर रहे हो, बाकी सारा काम कर रहे हो। इसी ये सेमेस्टर फिर खत्म हो जाएगा तो वापस नहीं आएगा ना। ये सब्जेक्ट फिर खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे पढ़ोगे? पढ़ सकते हो बट एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ जाएगा, तभी बताना है। मैं यहाँ रूल करने थोड़े ना बैठा हूँ, मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम कि सर ऐसा हो रहा है, मैं अटेंड नहीं कर पा रहा। बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर हैं, जो अटेंड नहीं कर पाते, मुझे टेक्स्ट करते हैं कि सर मैं आज नहीं अटेंड कर पाऊंगा, या आज ऐसा हो जाएगा, आज ऐसा हो जाएगा। तो मैं ध्यान रखता हूँ उनकी बात को। तो आई विल एक्सपेक्ट दैट यू विल नॉट रिपीट इट अगेन, है ना? इफ यू हैव यस एनी सर। डिफिकल्टी यू कैन शेयर, ओके, रिगार्डिंग योर यस सर। classes and all. Okay, I will sometime later I will manage the extra classes on weekly basis so that we can cover many different parts, doubt, confusion, whatever you people may have. Or I will share you some best videos that you can see and which can take less time for preparation and all. So you should share me. Okay, Chirag? यस सर। Promise not to repeat it again. यस सर, आई प्रॉमिस। Good. And प्रखर क्या होगा सर? तेजवान बोल रहा है it will print value x and is equal to y. गुड, ठीक है। देखो यस सर। अब बताओ प्रखर क्या होगा इसका आउटपुट? सर 40 प्रिंट करेगा वो। 40 प्रिंट 40। करेगा। क्यों? यस ये बताओ कैसे करेगा सर, 40? वो 4 हम्म, मतलब इक्वल नहीं है तो वो एल्स प्रिंट करेगा। अच्छा, x इक्वल टू y नहीं तो वो 40 हाँ, प्रिंट करेगा। 40 पहला आउटपुट 40 आएगा, ठीक है, गुड। क्योंकि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, पहले कंडीशन चेक करेगा x ग्रेटर है 0 से क्या, यस ट्रू, देन x इक्वल टू y है क्या, नो फॉल्स, देन एल्स में आएगा और x और y की वैल्यू प्रिंट कर देगा 4 एंड 0, और फिर x की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर सेकेंड टाइम चेक करेगा, फिर से आएगा, और ये तब तक चलेगा जब तक कि x और y की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती है। तेजवान ने सही बताया था। ओके, मानव ने हमें बताया कि जब तक 2 इक्वल टू 2 नहीं हो जाएगा ये ब्रेक
एग्जीक्यूट नहीं होगा और ब्रेक। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर एक डाउट था कि हम्म। जब इसको Z इस्तेमाल ही नहीं करना था तो इसने इसको डिक्लेयर क्यों किया यहाँ पे? डेविएट करने के लिए, आपको अननेसेसरली कंफ्यूज करने के लिए करता है ऐसा, है ना। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहता है, मतलब जिनको प्रोग्रामिंग एसेंस नहीं पता वो भी प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं, थोड़ा बहुत लाइट नॉलेज रखते हैं, और देखो आउटपुट निकालना इतना भी हैवी काम नहीं है, आप गेस बेसिस पे भी बहुत सारा काम कर सकते हो। तो कंफ्यूजन इंसर्ट करने के लिए यूजुअली जो ऑथर्स हैं वो लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में गेट जैसा स्टैंडर्ड एग्जाम में जाओगे तो वो लोग ज्यादा ऐसा काम करते हैं। जैसे यहाँ पे x माइनस माइनस वाई प्लस प्लस होता है, यहाँ पे z प्लस प्लस भी डाल देते हैं, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि z तो इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन कर क्या रहे हैं, कहाँ z प्रिंट होगा, कुछ तो है जिसके कारण इसने z को दिया हुआ है, तो ऐसा आपको थॉट आता। लेकिन जो कॉन्फिडेंट है प्रोग्रामिंग में वो समझता है कि ओके ये तो वैसे ही बोगस है, दैट इट हैज नो यूज। क्लियर? यस सर। Okay, it seems that you people are reading to some extent because many of you answered my question, so it's good, and I hope that you people will solve this exercise. And one more time, if this is the loop, take an easier one. So much easier one. This one, ये तो थोड़ा और मुश्किल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, what would be output the following program? ये वाला प्रोग्राम जो होगा इसका क्या आउटपुट होगा बताओ। सी, who will tell me? तो देखो पहले मैं इसमें हिंट करता हूँ क्या होगा। आई की वैल्यू दे दी गई है, जे की वैल्यू दे दी गई है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन देना चाहिए था, कंडीशन देना चाहिए था, और जो इस वेरिएबल को आइटरेट कर रहा है उस वेरिएबल के लिए हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना चाहिए था। यानी जिस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, जिस वेरिएबल पे कंडीशन डाल रहे हैं, उसी वेरिएबल का हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना चाहिए था, ताकि एक टाइम आए जब ये कंडीशन फॉल्स हो और ये लूप स्टॉप हो जाए। ठीक है, ये तीनों रिक्वायरमेंट हमारी थी, बट ये दिया नहीं यहाँ पे। चलो कोई नहीं, मतलब कि हम लोग बिना कुछ किए लूप में एंटर कर सकते हैं। कुछ नहीं दिया, यानी कोई गेट ही नहीं है, कोई बस वॉल दिया हुआ है, दीज आर वॉल्स, पिलर खड़ा है लेकिन उसमें कोई गेट नहीं दिया हुआ है। तो गेट नहीं दिया है तो हम लोग फ्रीली एंटर कर सकते हैं। फ्रीली एंटर करते हैं और चेक करते हैं आई की वैल्यू 5 है क्या, ग्रेटर देन 5 है क्या, फॉल्स, देन वी विल गो टू एल्स। और क्या करेगा, जे होगा वो आई से बड़ा हो जाएगा, मीनिंग जे इक्वल टू जे प्लस आई, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 प्रिंट कर देगा। और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस जे, यानी आई की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू 2 थी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर से लूप में आएंगे, कोई कंडीशन चेक नहीं करना है, यानी फ्रीली वी कैन, अगली बार भी हम इस लूप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस टाइम आई की वैल्यू 3 है, तो 3 होने पे 3 इज ग्रेटर देन 5 फॉल्स, एल्स में आया, जे की वैल्यू बढ़ गई, जे की पुरानी वैल्यू थी 2, अभी आई की वैल्यू है 3, तो 5 हो गए और 5 प्रिंट कर दिया। और अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुरानी वैल्यू थी 3, अभी जे की वैल्यू है 5, 8 हो गई। फिर से लूप में आया, फ्रीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं लूप को एक बार और, जितनी बार उतनी बार लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इफ कंडीशन में आया 8 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू, ब्रेक। जब ही ब्रेक देखा तो देखा कि ये जो ब्रेक है ये किस लूप के अंदर है, इसके ठीक सबसे क्लोज लूप कौन सा है, ये वाला लूप है, तो इसका जो क्लोजिंग ब्रेस होगा इसके बाहर जंप कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा कंट्रोल। ठीक है, तो ब्रेक क्या करता है, इस जो जिस लूप के अंदर है उस लूप से बाहर जंप करा देता है कंट्रोल को, और ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। यानी जे की दो वैल्यू, पहली बार जो वैल्यू थी और दूसरी बार जो वैल्यू 2 और 5, आई थिंक इस वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। एनी डाउट? नो सर, क्लियर ना? सर क्लियर है। यस।
तो क्लियर है तो ठीक है। ये बी वाला बताओ तो क्या होगा? श्वेतकेत, सर वो 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। श्वेतकेत यस सर। क्या होगा इसका आउटपुट? बी सर। हाँ, बी का बताओ। क्या हुआ? ओके, टेल मी सीरियसली, सर कैसे कैसे आई एग्जीक्यूट हो? सर आई आई हम्म लेस देन है 5 का। हम्म बोलो। सर फिर आई की वैल्यू आएगी 5। क्या आएगी? श्वेतकेत, माइक को अनम्यूट बार बार मत, म्यूट में मत डालो, एक बार अनम्यूट करो, आइट्रेशन समझाओ एंड देन लेफ्ट। हाँ, बताइए अब आइट्रेशन बताइए कैसे होगा। And if you have difficulty in online call, na, you can just call me on my phone number. I need explanation only. Game is not important. Shwetket, सर आई की वैल्यू 5 बार प्रिंट होगी, पहले 5 फिर 4 3। पहले 5 प्रिंट होगी। नहीं 1 2 3 4 5। हाँ, देन जब वो इसके इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल? 5 के या 5 से बड़ा, हम्म देन वो शायद ब्रेक होगा। शायद ब्रेक हो जाए। ब्रेक तो स्टेटमेंट लिखा नहीं है यहाँ पे कहीं पे। हाँ ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक तो नहीं होगा ना? ये तो आगे उसके भी बाद प्रिंट शायद करना वो चाहिए ना? खत्म हो जाए। नहीं सर वो 5 लिखा हुआ है ना सर। कहाँ 5 लिखा है तो क्या हो गया? लेस देन लेस इक्वल टू देन 5 लिखा 5। है ना? हाँ, तो माइनस में भी तो प्रिंट होगा। तो 5 या तो 5 या 5 से छोटा। माइनस भी तो प्रिंट होना चाहिए। हम्म सर माइनस क्यों होगा? नहीं होगा, वो तो 5 से छोटा है ना। हम्म नो सर माइनस तो नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा यही तो मैं पूछ रहा हूँ। माइनस भी तो 5 से छोटा है ना। -3 -4 -5 छोटा है कि नहीं है सर 5 बाकी से? यहाँ माइनस हम्म है, बट आई की वैल्यू 1 है तो 1 2 3 4, तो आई थिंक 5 तो माइनस में होगी नहीं वैल्यू। हम्म आई की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक, फिर 2 क्यों हाँ प्रिंट होगी आई की वैल्यू? तुमने कहा ना कि 1 2 3 4 5। -1 भी क्यों होगी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं होगी और 2 क्यों सर होगी क्योंकि प्रिंट, ये बताओ। जब आई की वैल्यू 1 क्योंकि है, जब आई की हाँ वैल्यू 1 है तो 2 क्यों प्रिंट होगी? आई लेस देन 5 है ना, तो हाँ 1 हाँ के हाँ, बाद 2 3 4 5। तो इस हिसाब से तो -1 भी लेस देन 5 है। मैं ही सर बोल रहा हूँ। बाकी आई आई की वैल्यू 2 क्यों प्रिंट होगी? कारण बताओ, क्या ऐसा लिखा है प्रोग्राम में जिसके कारण 2 प्रिंट हो जाएगा? सर समझ में आ बाकी रहा है कि माइनस नहीं तो तुम्हें? नहीं होगा। हाँ हाँ, बोलो।
सर आई थिंक आप कंफ्यूज कर रहे हो थोड़ा। हाँ कंफ्यूज तो करूंगा ही मैं ना, मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें, तो मैं तो कंफ्यूज करूंगा ही। मैं तो बोल ही रहा कि मैं कंफ्यूज कर रहा तुम्हें, तुम्हें करेक्ट करना है अपने आप को। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो बोलो यस, नहीं आ रहा है तो बोलो नो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है बच्चे, फिर से पढ़ना है इसको, हाँ सर, है ना। तो कोई ऐसा ऑफेंस थोड़े ना, तुम सर क्राइम थोड़े ना नहीं किया है। यार। हाँ तो बस ऐसा करना है ना, क्राइम थोड़े ना किया तुमने कोई, तुमने बस पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई नहीं की तो उसका सॉल्यूशन है पढ़ाई करना है ना। पढ़िए, ऐसा डिपेंडेंट आंसर मत दीजिए, किससे पूछ के दे रहा तुम आंसर। एनीवे ओके, एनीवे आई इनकरेज एवरीवन जस्ट टू रीड, पढ़िए, इतना आप कैजुअली मत लीजिए। मैं ऐसे ही वाइवा लूंगा आने वाले सारे सेशन में। और कोई डाउट है फॉर लूप में तो पूछो, लूपिंग में, कोई भी लूप में। सर हाँ बोलो मानो। सर मितुल। मितुल सॉरी, ओके मितुल बोलो। सर जो आपने अभी क्वेश्चन बताया उसमें डाउट है। हाँ रुक जा, सर निकाल मुझे दे रहा हूँ। डाउट रुक जा पहले क्वेश्चन आने दो। ये आ गया, हाँ बोलो बोलो सर मितुल। मुझे डाउट है, या तो ये हम्म, एरर बता रहा, या तो जो 1 है वो इनडेफिनेट टाइम प्रिंट हो जाएगा। क्यों एरर क्यों बताएगा? सर वो सर इसमें क्योंकि सिंटेक्स एरर है ना। हाँ सर, पहले अपना होता है डिक्लेरेशन। एग्जैक्टली, यहाँ फिर सेमीकलन दे दिया ना इसने, तो हाँ सेमीकलन सर देने के वही। कारण ये आई प्लस प्लस तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो मेरी बात? ये आई की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर आई की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू 1 ही है, आई 1 5 से छोटा है और 1 प्रिंट करेगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये 1 को प्रिंट करता जाएगा। सर बाकी क्वेश्चन मेरा ये भी है कि यहाँ पे जो स्टेप आनी चाहिए ना, इसने तो वो स्टेटमेंट दे दी। ये वाली हाँ सर, ये प्रिंट एफ जैसे कि है ना, हाँ दे सकता है, पहले कोई दिक्कत नहीं है। दे सकते सर। हाँ दे सकते हैं, मतलब देखो होगा क्या, इंक्रीमेंट नहीं हुआ। यहाँ तुम ये भी कर सकते थे आई इक्वल टू आई प्लस 1 कॉमा प्रिंट एफ आई, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। है ना। हाँ ये बात ध्यान रखना है, दो ओके सेमीकलन सर। यूज करना है, ये कंपलसरी है। उस सेमीकलन के आगे पीछे क्या रखना है ये कोई कभी कभी गाइडलाइन दिया क्या कि इसमें यही रखना है, इसमें ऐसा ही रखना है? कहीं नहीं बोला इसने। बुक पे जब पढ़ोगे तो ध्यान ओके देना, सर। कहीं ऐसा कुछ नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि इस दो सेमीकलन के बीच में ये टाइप का चीज होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला इसने। ओके गुड सर। गुड, वैलिड क्वेश्चन। और कोई क्वेरी? ठीक है, ध्यान से पढ़िए। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद फंक्शन एंड ऑल, या फिर कुछ डाटा टाइप को रिविजिट करेंगे और थोड़ा एक्सटेंडेड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉग इंट एटसेट्रा। और कल मैं टेस्ट लूंगा, टेस्ट जब आपका 2:40 में खत्म होता है ना लेक्चर। यस सर। और सुबह में 10:40 में स्टार्ट होता है। तो 9 बजे कैसा टाइमिंग है? 9 AM, आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर एवरीवन। सुबह सुबह फ्रेश रहोगे, 15 मिनट 20 मिनट लगने हैं, ठीक है। हाँ सर, सुबह मत रखो ना, हाँ हाँ वो तो बोलो सन, क्या हुआ? सुबह मत रखो ना। सुबह नहीं रखो, सोते हो? ठीक है 3 बजे रखता हूँ। नहीं नहीं, सोते नहीं है, वो थोड़ा काम रहता है। कोई बात नहीं, अभी ठंड ठंड का टाइम है, 3 बजे रखते हैं। ये सर 3 क्लासेस, बजे ठीक है। हाँ लेक्चर क्लासेस के अपनी टाइम टाइम पे पे। रख लो ना, क्या हुआ? लेक्चर के टाइम पे रख लो ना। नहीं नहीं, लेक्चर नहीं छोड़ूंगा मैं लेक्चर चलता रहेगा, लेक्चर बहुत काम है अभी लेक्चर का।
तुम लोग का रिवीजन का चक्कर नहीं रहता तभी तक कोर्स खत्म हो गया रहता। रिवीजन भी करोगे, कोर्स भी करोगे। सर तो दूसरी क्लास ले लीजिए, किसी और टीचर के टाइम पे कर अरे दीजिए। कोई नहीं, 3 बजे चलेगा, वो 15 मिनट का तो लगेगा टाइम, कौन सा बड़ा टाइम है। बस टेस्ट इसलिए रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि आप थोड़ा उसको लेके सिंसियर होके ना एक बार पढ़ते हो, पढ़ के आते हो, इसलिए मैं पहले चैप्टर से पूछूंगा, ठीक है। तो 15 मिनट लगेंगे, तो फिर 15 मिनट बाद अपने लेक्चर शुरू कर लेना आप। नहीं, फिर तुम लोग 5 मिनट बाद ज्वाइन करता है, फिर 5 मिनट रिलैक्स टाइम ले लेता है, तो पूरा लेक्चर का टाइमिंग खराब हो जाता है नहीं ना। सर, ऑन टाइम सर पक्का टाइमिंग पे आएंगे सब लोग। हाँ, नहीं 3 बजे ही रहेगा, पहला टेस्ट 3 बजे लेने दो, फिर मैं अगले दिन सोचूंगा, ठीक है। अभी ओके लेक्चर को सर, डिस्टर्ब ओके मत सर। करो। पहले चैप्टर से इस वीक में पूरा पहले चैप्टर से ही पूछूंगा, कोई दूसरा तीसरा चैप्टर नहीं लूंगा। इस वीक हर दिन 15-15 मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है। और मैं फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन बस पूछूंगा और किसी भी चैप्टर से नहीं पूछूंगा। तो प्रिपेयर योर चैप्टर 1, क्लियर। लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ो, लाइन बाय लाइन में बुक से ही पूछूंगा और कहीं से नहीं पूछूंगा। सर हाँ, बुक की एमसीक्यूज रहेंगे वैल्यूज को मैं चेंज कर क्वेश्चन सकता हूँ। बोलो। एमसीक्यूज रहेंगे। हाँ, एमसीक्यूज ही रह सकता है, या फिर कोई क्वेश्चन जरूरी लगेगा तो एक्सप्लेन वाला भी हो सकता है, मैं गारंटी नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी क्वेश्चन सेट नहीं करूंगा ना, ठीक है। ओके सर। ओके, ओके देन, थैंक यू ऑल। क्वेरी हो तो ग्रुप पे पूछा करो, ओके सर। कल के लिए 3 बजे।